concept through question series of quantitative aptitude. We will discuss some 10 important questions for your HPCL exam. So now let us discuss questions one by one, and you may try to solve the question with me. Okay. So here is the first question. Read the question carefully and try to answer this, and then watch my solution. Okay, so now let me explain the solution. PQRS एक rectangle है. Okay, PQRS is a rectangle. So suppose this is rectangle PQRS. Okay, in a rectangle we know that every interior angle is 90 degree. Now T is a point on PQ such that RTQ is an isosceles triangle and PT equal to 5Q2. Okay, जो PT है वो ज्यादा होगा QT से. So suppose T is here. So this PT is equal to 5QT. So let QT is equal to X. This is X. So this will be 5X. Okay. And RTQ is an isosceles triangle. So this and this both are equal. So if this is X, then this is also X. Okay. Since RTQ is isosceles, so two sides are equal. So ये दोनों side equal होंगी. Because ये तो hypotenuse है, वो तो equal हो नहीं सकता side के. Okay. Right angle triangle में. Now if the area of the triangle RTQ, area of this triangle RTQ is 12 root 3. Okay. So now what is the formula for area of right angle triangle? This area. Half into base. What is base? QT. X into height. This is also X. And this is equal to 12 root 3. So X square is equal to 24 root 3. Clear? Now they are asking the area of the rectangle PQRS. So the overall area of the rectangle PQRS. ये total area कितना होगा? Length into width. Okay. So length कितना है? 5x plus x, 6x. और multiplied by width कितना है यहाँ पे? X. So this will be the area of the rectangle. So it is 6x square. So equal to 6 into 24 root 3. Okay, because x square is 24 root 3. So this is equal to 144 root 3. So clearly A is the right option. Okay. So there may be a question on area of triangle or any area of rectangle or any quadrilateral in your exam. Now come to the second problem. Question number 2. So read the question, try to solve this and then match your answer with my answer. Okay, so now let us try to solve this question. The simple interest, okay, on a sum of money is 9 upon 35 of the sum. So let sum of money means principal is P. Okay, so what is the formula for simple interest? We know that simple interest formula is PRT upon 100. P for principal rate of interest time upon 100. This is the formula for simple interest. Okay. Now the simple interest is 9 upon 35 of the sum, matlab of the principal. So this is 9 upon 35 P equal to 9 upon 35 P equal to P upon 100
into, now number of years is numerically 5/7 times of rate of interest, rate per percent. ओके, सो ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है टी जो है ये टी, ये 5/7 टाइम्स है रेट का. सो आर इंटू, in place of t we can write 5/7 r. Okay, now we can cancel some terms. 9 sorry, p से p को कैंसिल करेंगे और यहां पे 7 से हम इस 35 को 5 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं और ये 5 से 20 टाइम्स, 5 से ये 4 टाइम्स और 4 into 9 36. So we get 36 equal to r square. So clearly r is equal to 6. So rate of interest is 6. ओके, जो रेट पर सेंट पर एनम है दैट इज 6% पर एनम. नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5 years? ओके, क्या अमाउंट होगा 5 years के बाद? फॉर द सम ऑफ ₹110 मीन्स इफ वी टेक प्रिंसिपल इक्वल टू, सपोज वी टेक प्रिंसिपल इक्वल टू 110. ओके, सो आफ्टर 5 years मीन्स t is equal to 5 and we use the above rate of interest, means we use this 6 rate of interest r equal to 6. So then what will be the amount? So what is amount equal to? Principal into 1 plus rt upon 100. ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रखने होंगे सारे. ओके, सो इक्वल टू 110 into 1 plus rt. So 30 upon 100. Okay, so 3/10. So equal to 11 और into 13. ओके, ये 13/10 होगा, 0 से 0 कटेगा. सो इक्वल टू 143. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. Basic formulas of simple interest, compound interest you have to remember because you may get question from this topic also in your exam. Okay, now come to the next problem. You can solve it yourself now by just getting the idea. So question number 3. So what will be the answer to this third question? Let us find out the answer. Walking at 60% of his usual speed. Okay, a man reaches his destination 1 hour 40 minutes late. So first of all, 1 hour 40 minutes equal to 1 plus 40 upon 60 hours. इसको टोटल आवर्स में चेंज कर लेंगे हम. इक्वल टू 1 plus 2/3 इक्वल टू 5/3 आवर्स. ओके, ये जो टाइम है हमारा ये आपका कितना है? 5/3 आवर्स है. नाउ सपोज ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस इज द डेस्टिनेशन. ओके, यहां से स्टार्ट करता है और ये डेस्टिनेशन है और ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ पे टोटल इनके बीच का ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया. नाउ इफ द यूजुअल स्पीड, ओके, यूजुअल स्पीड इज v एंड यूजुअल टाइम टेकन इज t. अगर नॉर्मल स्पीड से चलता है पर्सन तो वो टाइम t आवर्स का लेता है, तो यहां से यहां पहुंचता है. ठीक है ना? सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम. ये हमारा डिस्टेंस होगा ये वाला. ठीक है, नाउ सपोज he walks at 60% of his usual speed. So suppose speed is 60% of v. Okay, 60 upon 100 v equal to 3/5 v. अगर स्पीड ये हो जाती है तो अगर स्पीड हमारी क्या होगी? देखो लेस हो गई है तो टाइम तो डेफिनेटली ज्यादा लगेगा. सो टाइम कितना लग रहा है? t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू न्यू टाइम. ये न्यू स्पीड है, सपोज v डैश इक्वल टू, ठीक है, इसको हमने रिड्यूस कर दिया है तो न्यू टाइम कितना हो रहा है?
1 आवर 40 मिनट्स मीन्स 5/3 आवर्स मोर. सो पहले टी आवर्स लग रहा था, अभी टी प्लस 5/3 आवर्स, इतने आवर्स का टाइम लग रहा है. ओके, सो अगर स्पीड ये है तो टाइम इतना लग रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो स्टिल डिस्टेंस के ही इक्वल होगा ना, ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा. सो दिस vt, ओके, डिस्टेंस vt इज इक्वल टू 3/5v इंटू टी प्लस 5/3. सो v से v को कैंसिल करेंगे और यहां पे 5t इक्वल टू 3t प्लस 5. सो 2t इक्वल टू 5. So what is t equal to? T equal to 5/2 hours. So what will be the answer? Option number D. Okay, this will be the right answer. This one. 2.5 hours का टाइम लगेगा, फिर जो यूजुअल स्पीड होगा, यूजुअल टाइम लगेगा, दैट विल बी 2.5 hours, बिकॉज हमने यूजुअल टाइम को क्या लिया था, टी, दैट वी हैव कंप्यूटेड हियर. Now come to the next concept. Question number 4. Okay, so now you try to solve this question and find out your answer. Then match your answer with my answer. Okay, so now let me solve this question. क्या आंसर होगा इसका वो हम ट्राई कर लेते हैं. ओके, एक सम है 7500 का, जो अमाउंट्स होता है किसमें, 8748 में, आफ्टर 2 years एट ए सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट सपोज हमारा R% पर एनम है. लेट अस टेक इट एज R% पर एनम. ओके, सो वी नो दैट फॉर्मूला फॉर अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus RT, 1 plus R upon 100 to the power T. T means n number of time units. Okay, ये हमारा फॉर्मूला होता है in case of compound interest. So amount is 8748 divided by P. Okay, P is principal, that is 7500 equal to 1 plus rate, R is unknown, and this number of टाइम यूनिट्स इज 2 years. रेट पर एनम के हिसाब से है तो 2 years का मतलब 2 टाइम यूनिट. ओके, सो हियर वी विल पुट 2. नाउ वी कैन मेक कैंसिलेशन. सो कॉमन फैक्टर अगर हम देखें, यहां पे देखो 8 plus 7 15 plus 4 19 plus 27 आएगा सम. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. सो 3 से कैंसिल कर लेते हैं पहले, 2500 और यहां पे 2916. okay, sum of rupees 7500 amounts to rupees this. After 2 years add this. now हमें कंप्यूट करना है 1 plus R upon 100 का स्क्वायर. ओके, इसको 2 से 4 से कैंसिल करने की ट्राई करते हैं. और इसको भी 4 से कैंसिल करते हैं. सो 729 अपॉन 625. ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स. सो 729 का स्क्वायर रूट तो 27 होता है.
और अपॉन में 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100. सो दिस 1 को लेफ्ट में लेके जाएंगे सो 27 माइनस 25 अपॉन 25 मतलब 2 अपॉन 25 इक्वल टू r अपॉन 100. ओके 25 से 4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में r इक्वल टू 8 आ जाएगा. सो 8% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया पर एनम. क्लियर? नाउ दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम. ओके अगर हम प्रिंसिपल को सेम रखते हैं सो P इक्वल टू 7500 इंटू R. R इज डबल द अर्लियर इंटरेस्ट रेट. जो पहले इंटरेस्ट रेट था उसको डबल करना है, तो 16 इंटू और टाइम कितना लेना है हमें 4 प्लस 3 अपॉन 5 ईयर्स. ओके सो 23 अपॉन 5 ऑन 5. सो इसको 5 से कैंसिल करेंगे 1500. ओके अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में 100 करेंगे. यहां पे फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, क्या प्रिंसिपल रेट हमने डबल कर दिया, टाइम और अपॉन 100. अब ये 0 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज लेफ्ट 15 इंटू 16 इंटू 23. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा. कितना आंसर आ सकता है चेक कर लेते हैं. 240 इंटू 23 ओके इक्वल टू 0 इंटू, अब ये 24 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 5520 ये आएगा प्रोडक्ट आपका. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दिस बी विल बी द राइट आंसर. ओके एक बार हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट का, दोनों को यूज करना है बस हमें, नथिंग स्पेशल देयर. बट क्वेश्चंस में तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे जिसमें वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, या कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया तो टाइम पूछ सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, अमाउंट, प्रिंसिपल. तो आपस में जो रिलेशंस होते हैं वो सारे आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5. द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच गिव्स रिमाइंडर 20 when divided by 36, 48, 54, 60 and 90. So try to solve this. Okay, so how to solve such problems? Okay, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आप बना सकते हैं. यू कैन चेंज दिस नंबर्स, यू कैन चेंज दिस नंबर, सो डिफरेंट प्रॉब्लम्स कैन बी फॉर्म्ड. Okay, and you have to remember the concept how to solve such problems in exam. So first of all, whenever you get any problem of this kind, you compute the LCM of these numbers. जो भी नंबर्स यहां पे गिवन है इनका आपको पहले एलसीएम निकालना है. ओके सो 36, 48, 54, 60 और 90 इन सब नंबर्स का एलसीएम हमें कंप्यूट करना है. ठीक है, एलसीएम के डिफरेंट तरीके होते हैं निकालने के, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप निकाल सकते हैं. सभी में मुझे जो कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है दैट इज 6. अभी मुझे 6 नजर आ रहा है कॉमन फैक्टर. ओके सो मैं 6 से डिवाइड करूंगा सभी को, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स. ओके नाउ 3 इज आल्सो ए कॉमन फैक्टर इन सम नंबर्स. कुछ नंबर्स में 3 भी कॉमन फैक्टर हो सकता है. सो राइटिंग 3 हियर, 2 टाइम्स, दिस इज नॉट डिविजुअल सो 8 रहेगा, 3 टाइम्स 10 का 10 रहेगा, डिवाइड नहीं होगा तो, और जो डिवाइड होगा वो 5 बचेगा यहाँ पे. नाउ 2 इज आल्सो ए कॉमन फैक्टर, सो 1, 4, 3 का 3 रहेगा 5 टाइम्स और ये 5 का 5 रहेगा. नाउ दिस 5 इज आल्सो ए कॉमन फैक्टर. ओके सो 1 का 1 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 1 1. अब 4 लेंगे और 3 लेंगे तो 1 1 आ जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज द एलसीएम, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स. जब आप यहां पे सारे 1 1 कर लेंगे या सारे के सारे जो है आपके को प्राइम नंबर्स बचेंगे यहां पे, तब उनका सबका प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी द एलसीएम. ओके
सो 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये आपका एलसीएम होगा. सो ये 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36 और इंटू दिस 5 और इंटू 12. सो 36 इंटू 60. सो 2160 ये हमारा एलसीएम आएगा. एलसीएम. ओके. First of all, we have to find the LCM of all these numbers. Now you can remove, you can delete this section. Okay. So I am deleting this section. Computation of LCM में आप delete कर रहा हूं, आप अपने आप practice कर सकते हो और निकाल सकते हो. Okay. After computing the LCM, what we need to do? Now let us relate one more concept here. Suppose they ask smallest number. Okay. Suppose they write smallest number, so that is a different problem. Now they are asking greatest number. ठीक है ना. तो smallest पूछ सकते हैं या greatest पूछ सकते हैं. दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है. ओके. दोनों को आपको अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना है. नाउ यहां पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का. अब देखो आप 6 डिजिट का अगर नंबर बनाते हो तो ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट में ओवरऑल क्या होता है, दैट इज 999999. ये नंबर आपका ग्रेटेस्ट होता है 6 डिजिट्स में. ओके. तो आप ये नंबर लिखेंगे 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर. इफ दे आस्क 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो यहां पे 7 डिजिट लिख देंगे. इफ दे आस्क 5 डिजिट तो 5 डिजिट लिखेंगे यहां पे. अब आप क्या करेंगे, यू विल डिवाइड दिस नंबर बाय दिस एलसीएम. ओके. इसको एलसीएम से डिवाइड करने की ट्राई करो. सो व्हाट विल यू गेट, 4 टाइम्स ट्राई करेंगे. ओके. सो 4 टाइम्स जाएगा ये, दिस 8640 9 5 3 और 1. ओके. 1359. Now let us take this number 9 here, this digit 9 here. Now we can multiply it with 6. Okay. So 12960. ओके. 7 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा. सो यहां पे 6 टाइम्स जाएगा. अगेन सब्ट्रैक्टिंग तो 9 3 6. सो वी गेट 639. ओके. नाउ इस 9 को यहां पे लिखेंगे. अब ये आपका 3 टाइम्स ट्राई करेंगे. देखो सो 6480 ज्यादा हो जाएगा. सो 2 टाइम्स करेंगे यहां पे. Now we get 970279. Okay, ये हमें मिलेगा. So if we divide this number, the largest 6-digit number, by this, we get this as remainder. Okay. So if we subtract this remainder from this number, now if we subtract this remainder from this number, the number obtained will be a multiple of this. That will be this into. Okay. तो हम क्या करेंगे, अब इस डिविडेंड में से इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ओके. सो 999999 और 2079. सो 9 में से 9 क्या, 0 29799. So this number will be actually exactly divisible by this LCM. So this number will be exactly divisible by all these numbers. ये जो नंबर हमारा मिला ये इन सभी से एग्जैक्टली डिविजुअल होगा. एंड दिस विल बी द हाईएस्ट नंबर. दिस विल बी द हाईएस्ट नंबर which is exactly divisible by all these numbers. Okay. But they want that there must be a remainder of 20 if we divide this number by these numbers. So we can add 20 into this. So if we add 20 into this, what we get? We get 997940. So this number, if you will divide this number from any one of these numbers, always you will get a remainder of 20. Okay. So according to the options, D is the right answer. Note down this. ये प्रोसीजर को आपको याद रखना है. तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन है उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं. Whenever you want to find greatest number of 6 digits or 7 digits or 5 digits or 8 digits, you have to follow this procedure.
Okay. Now let us take next question. Question number 6. Read the question carefully and try to answer this. Okay, so 3 containers A, B and C are having mixture of milk and water in the ratio. This is 1:5. Okay, ये जो vertical line दिख रहा है ना, this is nothing. एक गलती से vertical line ड्रा हुआ है यहाँ पे. This ratio is 1:5, 3:5, 5:7. Okay, इसको ध्यान से देख सकते हैं आप. ये vertical line कुछ नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में. अब देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कई बार. इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा. आप ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बना के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस ट्रिक को याद रख सकते हैं, तो आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा. ओके, सो यहां पे जो रेशियो गिवन है मिल्क और वाटर का है. ठीक है, मिल्क वाटर. और यहां पे आपका वॉल्यूम कितना है कंटेनर का वॉल्यूम. सो मिल्क वाटर का रेशियो 1:5 है यहां पे, तो 3:5 है. और ये 5:7 है. और कंटेनर का कितना है 5. ओके, 4 और 5. ये आप इस तरीके से एरे बनाएंगे. अब आप क्या करेंगे, देखो ये दोनों का सम कितना है 1 + 5 6 है ना. ठीक है, तो इसको दिस अपॉन सम. ओके, दिस अपॉन सम मतलब 5/6 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे इनको. ठीक है, 5/6 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स को. सो 5/6 और ये कितना हो जाएगा 25/6. क्लियर. यहां पे दोनों का सम कितना है 8 और यहां पे 4 है वॉल्यूम. सो 4/8 मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को. सो 3/2 और 5/2 ये लिखेंगे. हेयर 5 + 7 कितना 12. सो 5/12 से आप दोनों नंबर्स को इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट 25/12 और 35/12. ये आपका क्या है मिल्क और ये वाटर. नाउ फाइनल मिक्सचर में आप मिल्क और वाटर का रेशियो कंप्यूट करना चाहते हैं. सो दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी द रेशियो. ये टोटल सम अपॉन ये टोटल सम, ये आपको रेशियो दे देगा. ओके, सो ये सम कितना होगा टेकिंग 12 एज एलसीएम. सो 10 प्लस 18 और प्लस 25 अपॉन 12. ओके, डिवाइडेड बाय taking 12 as LCM. So 50 plus 30 plus 35 अपॉन 12. 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा. सो इक्वल टू 28 + 25 मतलब 53/115. सो दिस ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है, नाउ बाय चेंजिंग दीज रेशियोज एंड दीज रेशियोज यू कैन फॉर्म डिफरेंट क्वेश्चंस. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो. सभी में आपको ये ट्रिक याद रखनी है बस. सो फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा दैट विल बी 53/115.
Now come to next question, question number 7. So now come to question number 7 and let us try to solve this. 555 rupees 555 was to be divided among ABC in the ratio this one. So ये जो फ्रैक्शन में रेशियो है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, नंबर्स में. 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है आपका, एलसीएम विल बी 60. सो दिस रेशियो कैन बी रिटन एज, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15:12:10. ओके, ये रेशियो हमारा है जिसमें हमने डिवाइड करना था इस 555 को. सो मान लेते हैं कि 15x इतना तो हमने ए को दिया और बी और सी, 12x बी को देना था और 10x सी को देना था. तो कितना कितना अमाउंट मिलता, टोटल 15 + 12 + 10 कितना हो गया आपका 37. 37x इक्वल टू 555. सो क्लियरली x इक्वल टू 555 अपॉन 37. ओके, सो जो सी का शेयर होता वो कितना होता, जो मिलना था सी को, इक्वल टू 10 इंटू एक्स. सो 555 इंटू 0, 10 इंटू 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा साथ में, अपॉन 37. ये सी को मिलना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक हमने उसको डिवाइड कर दिया 4, 5, 6 के रेशियो में. सो अगर हमने 4, 5, 6 के रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, देन सी को एक्चुअल में कितना मिला, कितना रिसीव किया उसने, ये हमें चेक करना है. ओके, सो 4/5/6 मान लेते हैं कि 4/5 और 6 इतना अमाउंट मिला. सो टोटल कितना हो गया 15 एंड दिस इज इक्वल टू 555. ओके, सो इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे, अगर 5 से कैंसिल करेंगे, सॉरी, 3y इक्वल टू 111. सो y इक्वल टू 111 अपॉन 3. सो इस केस में सी को कितना मिला 6y. सो 6 इंटू वाई अपॉन 3. सो 222. ये अमाउंट एक्चुअल में मिला और मिलना चाहिए था ये. तो एक्सेस में कितना मिला, द अमाउंट इन एक्सेस कितना ज्यादा मिला. ठीक है, सो 222 माइनस दिस 5550 अपॉन 37, ये हमें निकालना है कितना होगा. सो टेकिंग 111 एज कॉमन, 111 को कॉमन ले सकते हैं यहां से. सो 2 माइनस 50 अपॉन 37. अब 37 यहां पे एलसीएम ले लेंगे. सो 74 माइनस 50 कितना होगा आपका 24. सो वी गेट इक्वल टू 111 मल्टीप्लाइड बाई 24 अपॉन 37. 37 इंटू 3 कितना होता है 111 होता है. सो 3 इंटू 24 कितना होगा 72. सो बी विल बी द राइट आंसर. Okay, so now come to the next problem, question number 8.
ओके सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन. रिधिमा स्पेंड्स 25%. अब देखो कितना स्पेंडिंग है उसका परसेंटेज में 25 प्लस 12 प्लस 17 और प्लस 7 प्लस 3 10. सो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 64. ओके अब 64% अगर स्पेंडिंग है तो सेविंग कितना है 36% सेविंग हुआ. इतना सेविंग है. अब उसका जो सैलरी है पर मंथ वो हमें पता नहीं है अभी. ठीक है ना. सो सपोज सैलरी इज एक्स. सो 36% ऑफ एक्स दिस वन इज इक्वल टू 18,000. सेविंग जो सेविंग्स है उसका 18,000 गिवन है. ओके सो नाउ so x equal to 50,000. so एक्चुअल में हर सैलरी इज 50,000. ओके नाउ किसी पार्टिकुलर मंथ में क्या किया उसने. इफ इन ए पार्टिकुलर मंथ शी डज नॉट स्पेंड इवन ए सिंगल रुपीज. मतलब कोई भी पैसा खर्च नहीं करती है. सारा का सारा पैसा एक महीने की सैलरी को अपना वो बैंक में डिपॉजिट कर देती है और वहां पे उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 3% पर एनम के हिसाब से और 4 साल तक करती है. तो 4 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, क्या अमाउंट मिलेगा. सो हेयर आर इज इक्वल टू दिस बिकम द प्रिंसिपल. एक महीने का जो पैसा है वो सैलरी उसकी प्रिंसिपल हो गया. ठीक है ना. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3 एंड टाइम इज 4 years. सो व्हाट विल बी द अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू P into 1 plus RT upon 100. This is the formula for amount on for simple interest. So equal to 50,000 into 1 plus RT. RT मतलब 12 upon 100. सो इक्वल टू ये 112 हो जाएगा ऊपर 112 अपॉन 100 से इधर कटेगा 500 और इंटू 112 इक्वल टू 56000. सो 56,000. सो डी विल बी द राइट आंसर. ओके कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमें बहुत बड़ा सा दिखता है. ठीक है ना. बट उसको सिंपल करना इजी होता है. आप बस पढ़ के उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ और अपने जो भी फॉर्मूले या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यूज करो, आंसर आ जाएगा. ओके सो नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 9. A loss of 19% gets converted into a profit of 17% when the selling price is increased by rupees 162. Okay. सो कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का ये आपको बताना है. ठीक है. This is the question. Read it and try to solve it. Okay. So now I am going to solve this. They are asking cost price. Okay. So let us assume that cost price of the article is C. अब अगर हम उसको 19% के लॉस पे सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा C माइनस 19C अपॉन 100. ओके. बट अगर हम सेलिंग प्राइस को 162 बढ़ा देते हैं, इसको सेलिंग प्राइस को क्या कर देते हैं S प्लस 162, इतना हमने इंक्रीज कर दिया 162. सो नया सेलिंग प्राइस ये बन गया. तब हमें क्या हो जाता है प्रॉफिट होता है. उस टाइम पे प्रॉफिट नजर आएगा. कितने परसेंट का 17% का. सो कॉस्ट प्राइस प्लस 17C अपॉन 100. सो वी हैव टू इक्वेशंस and by solving these two equations we can calculate C. okay so यहां पे जो आपका S है ये वाला, इस S की वैल्यू आप यहां पे रख सकते हो ना. ओके कितना हो जाएगा S, या इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दिस माइनस दिस. सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो तो 162 इक्वल टू C माइनस C कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएंगे दोनों. So 19 plus 10, 20, 36 C upon 100. C upon 100.
ओके, सो हमने इसको 18 से कैंसिल किया दोनों साइड, और यहां पे फिर 2 से कैंसिल किया 50. ओके, सो C इक्वल टू 450. So the cost price will be 450. This will be the right answer. Now come to next question number 10. A solid metal cone with base radius 12 सेंटीमीटर. ओके, एक कोन है, सो दिस इज ए कोन जो सॉलिड मेटल की बनी हुई है, ठीक है, R और ये हाइट H. अब इसका रेडियस कितना है, बेस रेडियस R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, H इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ओके, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम, कितना मेटल टोटल वॉल्यूम है. सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू R स्क्वायर, सो 144 और इंटू 24. नाउ इससे हमने क्या किया, सॉलिड मटेरियल जो इसका उसको मेल्ट किया और उससे स्फेरिकल बॉल्स बनाया, और हर एक स्फेरिकल बॉल का जो हमने डायमीटर रखा है वो 6 रखा है. सो क्लियरली रेडियस विल बी 3. सो कितनी बॉल्स बनेंगी उससे, तो एक बॉल का कितना वॉल्यूम होगा वो निकालेंगे, और उस वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देंगे नेट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल को. ओके, सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई R क्यूब. So what is the radius? Radius is 3. So 3 cube is 27. This one. Okay. अब ये रेशियो जो आएगा आपका वही आंसर होगा. सो कैसे कंप्यूट करेंगे इसको, π/3 और यहां पे 4π/3 है, तो π/3 से π/3 को कैंसिल कर देंगे. ओके, अब यहां पे आपके पास बचेगा 144 इंटू 24/4 इंटू 27. 4 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, ठीक है. अब इसको 9 से कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स, और ये 9 से 16 टाइम्स, और 3 से 2 टाइम्स. सो 16 इंटू 2 32. सो 32 balls can be formed. A will be the right answer. हमने क्या किया, कौन का नेट वॉल्यूम निकाला, मतलब जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल है उसका टोटल वॉल्यूम हमने कंप्यूट कर लिया. अब उससे हमने छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स बनानी है, तो एक बॉल में कितना वॉल्यूम लगेगा, उस वॉल्यूम से अगर टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगा. सिंपल कंसेप्ट, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे के सारे. तो मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब आपको रिवाइज करके रखने, कहीं भी आपको हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो we have discussed the 10 important questions for our exam. Okay, now I am ending this lecture, and in next lectures we will discuss some such more questions. Okay, all the best.